Student, question is assignment of laser. Last assignment laser की coherence length of laser beam for which the line width delta nu 3 kilohertz is 100 kilometer. Defend or refute. Student, आप देखिए coherence length is capital L equal to lambda square over delta lambda. Using little c equal to f lambda, lambda is little c over f. डिफरेंशिएटिंग कोसेंट तो ये आ जाएगा माइनस एक मैंने नहीं लगाया क्योंकि माइनस का मतलब फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा वेवलेंथ घटेगा. thus we obtain कैपिटल L इक्वल टू लैम्डा की वैल्यू को इंकॉर्पोरेट किया, डेल्टा लैम्डा या डी लैम्डा का वैल्यू को इंकॉर्पोरेट किया, f स्क्वायर कैंसिल तो ये लिटिल c और d स्मॉल f. therefore coherence length capital L is little c over df. little c is known to you. df which is delta f या delta nu in question it is given 3 kilohertz. kilohertz means 10 to the power 3 hertz. simplification 10 to the power 5 meter. broken 10 to the power 3 meter is 1 kilometer तो 100 kilometer. तो यही तो उसने कहा कि 100 kilometer. तो statement is defended. This question came in National Graduate Physics Examination NGPE. Next question is half width of gain profile of a helium neon laser is 2 into 10 to the power minus 3 nanometer. If the length of cavity is 30 centimeter. मैं फिर क्वेश्चन रीड कर देता हूँ. half width of gain profile of helium neon laser is 2 into 10 to the power minus 3 nanometer. Question is if the length of cavity is is 30 centimeter, how many longitudinal modes can be excited? Emission wavelength is 6328 angstrom. 4 options are given to you. Correct option is 3. कैसे करेंगे? little c is f lambda, small f c by lambda, differentiating cosec delta f magnitude is little c or lambda square, delta lambda number 1. Number of longitudinal modes which can be excited is denoted by capital N. Number of longitudinal mode which can be excited का formula half width divided by separation of longitudinal modes. Half width is represented by delta little f. Separation of longitudinal modes को spacing of longitudinal modes भी बोलते हैं. Call it as number 2. Use 1 in number 2. Use 1 in number 2. Therefore, capital N equal to little c over lambda square. Use 1 in 2. तो delta f जो है इसको मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ. So number of modes क्या आ जाएगा? delta f की वैल्यू little c और lambda square delta lambda और ये डाउनस्ट्रीम में spacing of modes. Label it as equation number 3. Now spacing between two adjacent longitudinal modes, which we know is little c over 2l. Label it as equation number 4. Capital L यहाँ पे length of active medium है या cavity length या length of cavity. तो स्टूडेंट न्यूमेरिकल सेकंड जो हम डिस्कस कर रहे थे उसमें कैपिटल L स्टैंड्स फॉर सेपरेशन बिटवीन टू मिरर्स या कैविटी लेंथ या लेंथ ऑफ कैविटी. अब हम 4 को 3 में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो नंबर ऑफ मोड्स जो है कैपिटल L का फॉर्मूला है बन जाएगा लिटिल c और लैम्डा स्क्वायर d लैम्डा बाय लिटिल c into 2 कैपिटल L. c से c कैंसिल
तो ये आ जाएगा डी लैम्डा और लैम्डा स्क्वायर इंटू 2 कैपिटल एल। अब डी लैम्डा की वैल्यू आपने देखी थी 2 इंटू 10⁻12 इंटू 2 इंटू लेंथ जो है दैट इज 30 इंटू 10⁻2 और वेवलेंथ जो है हीलियम नियॉन लेजर की क्या होती है 6328 एंगस्ट्रॉम एंड 1 एंगस्ट्रॉम इज 10⁻10 मीटर। तो ये एम के सिस्टम में सारी वैल्यूज यूज की, सिंपलीफिकेशन करने के बाद 2.99 तो रफली जो है वो 3 आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का 3 आंसर आएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 3, कंसीडर हीलियम नियॉन लेजर कंसिस्टिंग ऑफ 2 मिरर्स ऑफ रिफ्लेक्टिविटी कैपिटल R1 is 1 and capital R2 is 0.98. The mirrors are separated by distance of letter D is 20 centimeter and medium in between has a refractive index n suffix 0 equal to 1 and absorption coefficient alpha equal to 0. Question is the values of separation between the two. Question is the values of the separation between the modes जिसको डिनोट किया डेल्टा न्यू से and the width delta nu suffix p of each mode of the laser cavity r। तो ये क्वेश्चन हम इस वक्त कर रहे हैं। अब ये इसमें दो पार्ट पूछे हुए, द वैल्यूज ऑफ सेपरेशन बिटवीन द मोड्स डेल्टा न्यू और दूसरा क्वेश्चन पूछा हुआ है विड्थ डेल्टा न्यू सफिक्स टी। तो अब ये ऑप्शंस हमें 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। फर्स्ट इज डेल्टा न्यू इज 75 किलोहर्ट्ज एंड डेल्टा न्यू सफिक्स टी इज 24 किलोहर्ट्ज एंड सो ऑन सो। इसका ऑप्शन सी है, यानी डेल्टा न्यू 750 मेगाहर्ट्ज एंड डेल्टा न्यू सफिक्स टी यानी width of each mode of laser cavity is 2.4 megahertz. How to do this? कैसे करेंगे? Student, formula is very important. Separation between the modes is little c over 2 capital N. Little c की वैल्यू 3 into 10 per 8 मीटर per second over 2 और capital L जो है वो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है 2 into 10 to power minus 2 यानी 20 सेंटीमीटर है। आप देखिए mirrors were separated by distance of little d is 20 सेंटीमीटर। तो ये जो है सोल्व करके जो आएगा 20 into 20 सेंटीमीटर, तो उसके हम मीटर बनाएंगे तो 20 into 10 power minus 2 मीटर। तो ये सिंप्लीफाई करके 3/4 इंटू, क्योंकि ये मीटर से मीटर कैंसिल और ये 2 into 2 4, ये 10 to power minus 1 ऊपर जाके 10 to power 9 हो जाएगा। तो ये सोल्व करके 0.75 into 10 power 9 हर्ट्ज, जिसको हम 10 to power 6 हर्ट्ज into 10 to power 3 और 10 to power 6 हर्ट्ज को बोलते हैं मेगा हर्ट्ज। तो डेल्टा न्यू विच स्टैंड्स फॉर सेपरेशन बिटवीन द मोड्स वो 750 मेगाहर्ट्ज आ गया। उसके बाद मेरे को इवैल्यूएट करना है विड्थ ऑफ ईच मोड ऑफ लेजर कैविटी। देखिए ईच मोड विड्थ और द मोड स्पेक्ट्रल विड्थ का फार्मूला याद रखें, सेपरेशन ऑफ मोड्स न्यूमरेटर में और डाउनस्ट्रीम में कैपिटल एफ। यहाँ पे कैपिटल एफ ये वैल्यू का नाम है पाई इंटू कैपिटल R1 कैपिटल R2 की पावर 1/4 डिवाइडेड बाय 1 माइनस कैपिटल R1 कैपिटल R2 की पावर 1/2। सबसे पहले हम ये कैपिटल F निकालेंगे। तो कैपिटल F के लिए मुझे R1 R2 की पावर हाफ निकालनी है। कैपिटल R1 रिफ्लेक्टिविटी ऑफ वन मिरर विच इज गिवन टू मी 1। कैपिटल R2 इज रिफ्लेक्टिविटी ऑफ सेकंड मिरर गिवन टू मी 0.98 और ये स्क्वायर रूट सोल्व करके 0.9899। नाउ आई एम इन ए पोजीशन टू वर्क आउट कैपिटल F। कैपिटल F का फार्मूला अभी भी दर्ज है। कैपिटल R1 कैपिटल R2 की पावर 1/4 को इस प्रकार से लिख सकते हैं। अब जहां R1 R2 की पावर हाफ है वहां ये वैल्यू इनकॉर्पोरेट किया, फिर इसका मैंने स्क्वायर रूट निकाला तो ये 0.9949 1 में से सब्ट्रैक्ट किया, ये कैलकुलेशन करने से 309.29। Therefore each mode width is equal to
separation of modes divided by capital F. Separation of modes is 750 megahertz divided by capital F की वैल्यू 309.29, तो सोल्व करके 2.42 मेगाहर्ट्ज है। तो ये क्वेश्चन मुश्किल इसलिए है क्योंकि फॉर्मूला नहीं बच्चों को याद रहता है। दिस फॉर्मूला ऑफ कैपिटल F is to be learned, formula of each mode width is to be remembered, formula of separation between the modes which is little CO2 is to be remembered by you। तो प्लीज ये फॉर्मूले याद रखें, जब तक फॉर्मूले याद नहीं होगी न्यूमेरिकल नहीं होगा। थैंक यू। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन को देख रहा हूं। तो स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ लेजर बीम ऑफ वेवलेंथ 1.5 micron is used in a Michelson interferometer to obtain interference fringes. The fringes remained visible for a path length of 5 meters. Lower limit on coherence time and coherence width respectively are। 4 ऑप्शंस है, मैंने सर ऑप्शन वही लिखा जो करेक्ट ऑप्शन है, यानी ऑप्शन सी इस पे करेक्ट है। आई मीन टू से कोहेरेंस टाइम का ये ऑप्शन है और कोहेरेंस विड्थ का ये आंसर है। कैसे जस्टिफाई करेंगे? कोहेरेंस टाइम व्हिच इज डिनोटेड बाय टाउ, इट इज रेसिप्रोकल ऑफ डेल्टा न्यू। आल्सो डेल्टा न्यू का जो फार्मूला होता है लिटिल सी डेल्टा लैम्डा और लैम्डा स्क्वायर। वैसे तो यहां कोहेरेंस टाइम जो है दैट इज L ओवर लिटिल सी। अब हमें L डिवाइडेड बाय लिटिल सी, L जो है पाथ लेंथ, क्वेश्चन में लिखा है फ्रिंजेस रिमेन विजिबल फॉर पाथ लेंथ ऑफ 5 मीटर, तो कैपिटल L is given to me 5 meter, little c we know 3 into 10 power 8 meter per second, तो कोहेरेंस टाइम आ गया 1.67 into 10 power minus 8 second। स्टूडेंट लैम्डा जो है दैट इज सेंट्रल वेवलेंथ ऑफ सोर्स, डेल्टा u stands for spectral width of source in unit of, डेल्टा u जो सिंबल है that stands for spectral width of source in unit of frequency, और जो डेल्टा लैम्डा जो है दैट इज सिंबल ऑफ स्पेक्ट्रल विड्थ ऑफ सोर्स इन यूनिट ऑफ वेवलेंथ। मैं फिर बता दूं, डेल्टा लैम्डा जो है दैट इज ए सिंबल ऑफ स्पेक्ट्रल विड्थ ऑफ सोर्स, डेल्टा लैम्डा इज स्पेक्ट्रल विड्थ ऑफ सोर्स इन यूनिट ऑफ वेवलेंथ। अब हम ये देखिए डेल्टा लैम्डा इज इक्वल टू स्पेक्ट्रल विड्थ ऑफ सोर्स इन यूनिट ऑफ वेवलेंथ। तो स्टूडेंट डेल्टा लैम्डा का ये फॉर्मूला होता है लैम्डा स्क्वायर ओवर लिटिल सी इनटू टाउ, क्योंकि मैंने टाउ का फॉर्मूला ये लिखा है, टाउ वाज रिटन एज लैम्डा स्क्वायर ओवर लिटिल सी डेल्टा लैम्डा, क्रॉस मल्टीप्लाई तो डेल्टा लैम्डा आ जाएगा लैम्डा स्क्वायर ओवर लिटिल सी इनटू टाउ, और लैम्डा क्वेश्चन में गिवन था 1.5 माइक्रोन, माइक्रोन का मतलब माइक्रोमीटर, 1 माइक्रोमीटर इज 10 to power minus 6 मीटर, तो 10 power minus 6 मीटर का स्क्वायर यानी 10 power minus 12, तो 1.5 का स्क्वायर। c की वैल्यू आप जानते हैं, टाउ जो है कोहेरेंस टाइम अभी मैंने वर्कआउट किया था 1.67 into 10 power minus 8, तो सिंपलीफाई करके ये 2.25 और डाउन साइड में 5.01 into 10 power minus 12, क्योंकि ये और ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे तो इतने मीटर आ जाएगा, तो 4.5 into 10 power minus 30 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिल इन द ब्लैंक सूटेबली, हीलियम नियॉन गैस लेजर इज एसेंशियली, ये रिक्त स्थान भरो, इसमें आपको बताना है हीलियम नियॉन गैस लेजर कितने लेवल लेजर है, आंसर इज 4 लेवल लेजर। हीलियम नियॉन लेजर गैस लेजर है और 4 लेवल लेजर है। इलेक्ट्रिकल पंपिंग इसमें यूज होती है, नियॉन की पॉपुलेशन इन्वर्जन होती है विद द हेल्प ऑफ हीलियम। और अगला क्वेश्चन है रूबी सॉलिड स्टेट लेजर इज एसेंशियली व्हिच लेवल लेजर, फिल इन द ब्लैंक्स, तो इसमें इस डॉटेड लाइन की जगह फिल क्या करेंगे 3 लेजर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ए पल्स्ड लेजर ऑफ 660 नैनोमीटर वेवलेंथ हैज एवरेज पावर ऑफ 30 मिलीवॉट, pulse duration of 30 nanosecond and pulse repetition rate of 20 hertz। क्वेश्चन हमारे से पूछा हुआ नंबर ऑफ फोटॉन्स पर पल्स, नंबर ऑफ फोटॉन्स
पर पल्स में इस क्वेश्चन में इवेलुएट करना है। तो मैं अभी ये करके दिखाता हूँ। थैंक यू। So, number of photons per pulse is 4 options are given. I am to justify the option. Student, laser wavelength is given to me. Lambda is 660 nanometer. Energy of each photon is hν, which is hc by lambda. और एनर्जी जब इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हो और वेवलेंथ नैनोमीटर में हो तो अपस्टाइम में 1240 आता है, और अगर वेवलेंथ एंगस्ट्रॉम में हो एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हो तो ऊपर 12400 आता है। तो एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज 1240 एंड वेवलेंथ इन नैनोमीटर इज 660। तो इसका आंसर डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगा। जूल में बताना है तो वी नो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज 1.6 into 10⁻19 जूल। तो ये है एक सिंगल फोटोन का एनर्जी। अब अगला है लेजर पल्स का एनर्जी कितना है। एनर्जी ऑफ लेजर पल्स इज कैपिटल E इक्वल टू एवरेज पावर इनटू टाइम। एवरेज पावर क्वेश्चन में दे रखा था 30 into 10⁻19 और टाइम भी हमें क्वेश्चन में दे रखा है 1/20, तो 1.5 into 10⁻3 जूल आ जाएगा। तो आप देखिए वहां पे पल्स रेपिटेशन रेट दिया हुआ था, एवरेज पावर दिया था, तो एनर्जी ऑफ लेजर पल्स आ गया। अब आगे देखिए स्टूडेंट, देयरफॉर नंबर ऑफ फोटोन पर पल्स कैपिटल N इक्वल टू एनर्जी ऑफ लेजर पल्स डिवाइडेड बाय सिंगल फोटोन का एनर्जी। तो इन लेजर पल्स की जो एनर्जी है दैट इज 1.5 into 10⁻3 जूल और सिंगल फोटोन का एनर्जी 3 into 10⁻19 जूल। Therefore we say number of photon per pulse is 5 into 10⁻15। अब नेक्स्ट क्वेश्चन मैं रीड कर रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कोहेरेंस लेंथ ऑफ ए लाइट सोर्स इज रिलेटेड टू 4 ऑप्शंस आर गिवन। प्लीज ध्यान दें, कोहेरेंस लेंथ ऑफ लाइट सोर्स इज ऑलवेज रिलेटेड टू टेंपोरल कोहेरेंस। इसमें बी ऑप्शन आएगा, ए नहीं। अगला क्वेश्चन मैंने करवाया था आपको, लाइन शेप ऑफ नेचुरली ब्रॉडेंड लाइन इज, वो लॉरेंट्जियन शेप होता है, तो ये सीधा आंसर था बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फोटोन corresponding to transition between the two levels 1 and 2 have an energy hν equal to E2 minus E1। अब क्वेश्चन आइंस्टाइन कोएफिशिएंट से रिलेटेड है। क्वेश्चन है, देन रेशियो ऑफ आइंस्टाइन कोएफिशिएंट्स A(21) और B(12) is proportional to nth power of frequency nu, then value of little n is। तो इसका आंसर 3 है। कैसे करेंगे? अभी तो मैंने क्वेश्चन रीड किया, आपको ये मैंने डेरिवेशन करवाया था। अब डेरिवेशन में हमने, आपको याद होगा, प्लैंक्स रेडिएशन, ब्लैक बॉडी रेडिएशन में हमने ये प्लैंक्स लॉ यूज किया था, रो ब्रैकेट न्यू डी न्यू इक्वल टू 8/hν क्यूब और लिटिल c क्यूब डी न्यू, और डाउनस्ट्रीम में था e⁻hν और kBt -1। kBt यहाँ पे kB बोर्ड में कांस्टेंट है, kBt थर्मल एनर्जी है। ये हमने आइंस्टाइन कोएफिशिएंट की जो डेरिवेशन करवाए थे तब मैंने यूज किया था, रो ब्रैकेट न्यू इज A21 और B(1) into 1 over B12 और B21 e⁻hν और kBt -1। तो ये यहां से देखो, ये 1 आ जाएगा B12 और B21, और ये इक्वेट करेंगे यहां पे भी dν और यहां पे भी dν। तो A21 और B21 इज 8/hν क्यूब और लिटिल c क्यूब। और उन्होंने यही कहा कि ये A21 इज आइंस्टाइन कोएफिशिएंट फॉर स्पॉन्टेनियस इमिशन, B21 इज आइंस्टाइन कोएफिशिएंट फॉर स्टिमुलेटेड इमिशन। तो वाकई दिस रेशियो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यू क्यूब, और उन्होंने यही कहा nth पावर ऑफ न्यू, तो न्यू क्यूब, तो nth क्या आ गया 3। तो ये सिंपल क्वेश्चन था, इसका आंसर 3 आएगा।